So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In my last class we started to talk about the federal system under 1973 Constitution. So in my last class we talk about the brief background, how Pakistan adopted federal system in Pakistan and what kind of federal system was adopted. And in my last class we learned that there was a difference of theory and practice. Pakistan, the whole history of Pakistan is basically could be divided into two phases. The pre-federalization phase and the federalization phase. Pre-federalization phase that we learned in my last class started from 1947 to 1971. After the debacle of 1971, Pakistan decided to adopt federalism in its true letter and spirit. Somehow, first time the federal character in 1973 Constitution was given. लेकिन the critics they are of the opinion that whatever the system was being adopted from 1973 onwards was again not a pure federal structure. It was not a pure federal system introduced in Pakistan. So there was always demand from province. They wanted to have more and more political, economic, social, cultural autonomy, and central government used to have more and more power and influence over the provincial matters and over in the provincial affairs. So people they usually come up that federalism has not been adopted in Pakistan in its true letter and spirit. So then we started to talk about in my last class the system that 1973 Constitution promises with the people of Pakistan and the federal system that is basically being adopted. As I told you in my last class, the whole Constitution of 1973 is of federal in character. The whole Constitution is federal in character in nature. Lekin there are some specific provisions and chapters which directly deal with the structure of federalism in Pakistan. वो हमने पढ़ना शुरू किया था आर्टिकल chapter 5 and chapter 6. They directly deal with the federal system in Pakistan. And then we started to talk about the federalism, administrative federalism in Pakistan. In administrative federalism we learned that the constitution has divided legislative affairs, administrative affairs, divided between central government and provincial governments, and subjects for legislation they are being mentioned and fixed with reference to the power of provincial government and with reference to the power of federal government. तो वो जो हमने पढ़ा था as we talk in my last class part 5, जो part 5 है directly deal with the legislative and executive federalism, and part 6 we started to discuss लेकिन we ended our lecture over that. So हमने ये देखा कि with reference part 5 जो है that is directly related, इसके आगे फिर chapters भी हैं, और part 5 as we discussed in my last class deals with the legislative and executive federalism. उसके अंदर हमने देखा कि central government is having the power of legislation and provincial governments they are also having power of legislation, and there is a one list, concurrent list, जिसके अंदर भी both central and provincial government they can make legislation. अच्छा, उसके अंदर हमने कहा था जो central government है, central government under 1973 initially before the 18th amendment was having 59 total items, and federalist is basically divided into part 1 and part 2. पार्ट 1 के अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं एंड पार्ट 2 के अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 पार्ट जो फेडरलिस्ट के अंदर है. और कंकरेंट लिस्ट जो हैं, कंकरेंट लिस्ट वाज कंपोज ऑफ 47 सब्जेक्ट्स, एंड आफ्टर द 18th amendment द कंकरेंट लिस्ट इज़ एबॉलिश्ड. अच्छा, विद रेफरेंस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रेजिडुअरी पावर्स डिस्कस की गई. मीन द पावर विच आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन द फेडरलिस्ट एंड द पावर्स विच आर नॉट बीइंग discussed in the concurrent list they are
and given to the provincial governments to decide whatever they are willing to decide with the subjects in hand under the residuary powers. तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी. आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू दी फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म से जाने से पहले एक और भी लोग पीपल दे यूजुअली आस्क के दे यूजुअली रेफर टू दी एथनिक फेडरलिज्म. एथनिक फेडरलिज्म से क्या मुराद है कि डाइवर्सिटी मस्ट बी रिकग्नाइज्ड. डाइवर्सिटी मस्ट बी रिकग्नाइज्ड. आपको पता है पाकिस्तान में अराउंड 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस कमोबेश, एक्सैक्ट फिगर तो कहीं से मिल जा सकता है, लेकिन 35-36 के करीब कमोबेश लैंग्वेजेस दे आर स्पोकन इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान और इंडिया के अगर एथनिक फेडरलिज्म के तजर्बात का अगर हम एनालिसिस करें तो वन थिंग बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आती है कि इंडिया excluded religion from its system of politics, और पाकिस्तान took the religion, यानी इंडिया made religion out, पाकिस्तान made religion in. और इंडिया ने इन क्या किया, इंडिया मेड लैंग्वेजेस इन और पाकिस्तान लैंग्वेजेस को आउट कर दिया. तो यहाँ पे मानने वाले कहने वालों का ये कहना है कि इंडिया के अंदर इंडिया ने लैंग्वेजेस को इन किया, रिलीजन को आउट किया, पाकिस्तान ने रिलीजन को इन किया और लैंग्वेजेस को आउट किया. और पाकिस्तान का रिलीजन को इन करने से ये हुआ कि जो सोशली जो कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, जो रिलीजन छोड़ के लैंग्वेज की बुनियाद पे जो डाइवर्सिटी थी, दैट डाइवर्सिटी हैज़ नॉट बीन एक्नॉलेज्ड, रिकग्नाइज्ड अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. 47 में भी नहीं हुआ, 56 में भी नहीं हुआ, 62 में भी नहीं हुआ. और लोग कहते हैं कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एथनिक डाइवर्सिटी को एज सच रिकग्नाइज नहीं किया गया. तो एथनिक फेडरलिज्म के लिहाज से पाकिस्तान में जो तजर्बात हैं कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में क्या हुआ है, फाइनेंशियल या फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर क्या हुआ. अच्छा, फिस्कल फेडरलिज्म की ऑलरेडी हमने दो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ चुके हैं कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़ बीइंग मेड अंडर आर्टिकल 156. और इसके अलावा हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी पढ़ा है. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी डायरेक्टली डील करती है और वो भी अंडर आर्टिकल 153 से 159 के तहत, और जो उसकी जो कंपोजिशन है वो 153-154 के अंदर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो फेडरलिज्म के अंदर हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की. इसके अलावा कुछ दूसरे अफेयर्स भी हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कॉमर्स क्लास क्या है अंडर 151 आर्टिकल, ये चीज़ें हमने देखी हैं. और व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड फंक्शन बीइंग कमिटेड बाय सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके ऊपर भी हमने आर्टिकल 145 से 149 तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया. आज हम देखते हैं कि what kind of fiscal federalism is basically being introduced in 1973 constitution. अच्छा, before directly going to discuss what kind of fiscal federalism is being discussed in Pakistan, we have to again go back to the brief history of the wars being introduced in subcontinent, more specifically and Pakistan in general. आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर before the partition, Nimir Award was being introduced by the British government in subcontinent under Indian Act of 1935. Nimir Award. और Nimir Award का मकसद था from the total divisible pool of income, the share must be given. The share must be from the total income. Share must be distributed between the central government and the provincial governments according to the different indicators such as the population हो गया, poverty, inverse population density and revenue collection. अच्छा, Nimir Award was introduced in subcontinent by the British government in 1935. उसके बाद रेसमैन अवार्ड आया था इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द रेसमैन अवार्ड ऑफ 1947. आप लोगों को मैंने पाकिस्तान स्टडी में भी पढ़ाया था कि रेसमैन अवार्ड जो था 1947 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की. फ्राम द टोटल नेशनल इनकम शेयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड to the provincial by the government of Pakistan under the Resman Award.
और आप लोगों को पता है रेसमैन अवार्ड के तहत ऑन वन प्रीटेक्स और दी अदर, जो आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडी के अंदर फेडरलिज्म में पढ़ा था कि ऑन वन प्रीटेक्स और दी अदर वेरी लुक्रेटिव departments were being taken over by the government of Pakistan, and they were not on with the promise that these things would be taken by the central government for 1 or 2 years. उस वक्त emergency के हालात थे, पाकिस्तान government of Pakistan was in the dire need of having more and more financial resources. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविंशनल जो रेवेन्यू था, जो प्रोविंशनल शेयर था, उसको कम किया था इन 1951 और 52, बट इट वाज बीइंग प्रॉमिस के 1-2 साल के अंदर इसको रिस्टोर कर देंगे, लेकिन वो कभी रिस्टोर नहीं हुआ रेसमैन अवार्ड के तहत, जैसा कि सेल टैक्स की कलेक्शन वगैरह ये। उसके बाद और भी फाइनेंशियल अवार्ड इंट्रोड्यूस किए गए ज़्यादातर, जैसा कि अयूब खान ने किया 1961 में, 64 के अंदर। उसके बाद ज़ियाउल हक ने अवार्ड, फाइनेंशियल अवार्ड इंट्रोड्यूस करवाए 1979 में, 85 के अंदर, और मुशर्रफ ने किए 2000 और 2006 में। अच्छा, इन सब के ये जितने भी मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने जो फाइनेंशियल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स दे आर बीइंग कंसिडर एज अवार्ड्स ऑफ नॉन कंसेंसस। कोई कंसेंसस नहीं था, थ्रू द बैरल ऑफ गन और बाय फोर्स दीज अवार्ड्स फॉर बीइंग इंट्रोड्यूस, और ये किए गए थे। लेकिन कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 के अंदर जो फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंस कमीशन जो इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज बेस्ड ऑन कंसेंसस, वो कंसेंसस में था। और उसके बाद नवाज शरीफ के दौर के अंदर 1991 और 1996 के अंदर जो अवार्ड्स हुए वो भी कंसेंसस के तहत थे, और इसके तहत प्रोविंसेस का, जो नवाज शरीफ के अवार्ड्स के तहत प्रोविंसेस का जो शेयर था इन द टोटल इनकम, नेशनल इनकम, वो 28% से बढ़कर 45% हो गया था। नवाज शरीफ का जो लास्ट एज था 1996 में जो नेशनल फाइनेंस कमीशन दिया गया था, उसमें प्रोविंसेस का जो शेयर था इन द टोटल नेशनल इनकम वो 28% से बढ़कर 45% हो गया था। और इसके अंदर नवाज शरीफ के इस फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत पंजाब का अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 57.88% था, और सिंध का 23.28% था, NWFP जो उस वक्त था उसका 13.54 था, और बलूचिस्तान का 5.3 था। अच्छा, ये मैं फाइनेंशियल फेडरलिज्म बता रहा हूँ कि नेशनल इनकम में जो कंसेंसस के तहत आए उसमें भी प्रोविंसेस का 45% शेयर था, और बाकी 55% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। तो हमें नज़र आ रहा है इन तमाम, अगरचे वो कंसेंसस के तहत था, और हमें ये नज़र आ रहा है कि फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हैविंग मोर डोमिनेशन एंड मोर शेयर। और अभी मैं आप लोगों की एक बात बताता चलो, 18th अमेंडमेंट के ऊपर भी ये इस चीज़ में बड़ी ह्यू एंड क्राइब एस्टेब्लिश हो रही है कि प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा शेयर मिल गया 18th अमेंडमेंट के तहत, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयर नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है मुल्क चलाने के लिए। इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये फैंटेसी है या किस तरीके से ये रियलिटी है। खैर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि इन 2006 परवेज़ मुशर्रफ ने नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया, और लेकिन लोग कहते हैं दैट नेशनल फाइनेंस कमीशन वाज नॉट बेस्ड ऑन कंसेंसस। इसको 6th नेशनल फाइनेंस कमीशन भी कहते हैं, और इसके अंदर ये कहा गया था, मुशर्रफ ने डिक्लेयर किया क्या था कि प्रोविंसेस का इन नेशनल इनकम, नेशनल टोटल जो इनकम है उसके अंदर 45% शेयर होगा, एंड 5 साल के अंदर ये शेयर 45% से इंक्रीज़ होकर 50% तक चला जाएगा। यानी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% है, और 5 साल में यानी कि 2006 से लेकर 2011 तक परवेज़ मुशर्रफ गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन दैट every year 1% would be more given to the provinces, and from 45% to within 5 years the share of provinces in national income would be increased from 45% to 50%। 5 साल तक हो जाएगा। लेकिन इस कंसेंसस को भी लोग कहते हैं कि ये कंसेंसस, ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था, ये कंसेंसस पे बेस नहीं करता था, थ्रू द बैरल ऑफ गन था। लेकिन समहाउ परवेज़ मुशर्रफ ट्राई टू इंक्रीज शेयर 1% एटलीस्ट इन 1 year, एंड समहाउ ही प्रॉमिस दैट 5 years के अंदर 50% हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008,
और उसने 7th NFC अवार्ड लेकर आई, 7th NFC अवार्ड, जिसमें जो आपको पता है ये जो 2006 में 45% था और 1% इंक्रीज़ हुआ, तो 2009 के अंदर प्रोविंसेस का जो टोटल बजट था वो इस वक्त था अराउंड 47%, और 47 को बढ़ाकर उसने कर दिया 56%, यानी कि 56% तक लेके चले गए इन टोटल नेशनल इनकम। और फिर अगले 5 सालों के अगले सालों के लिए उन्होंने बताया कि 57.55% अगले 4 ईयर्स के अंदर होगा। मेरी बात सुन रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 2006 में provincial share in fiscal federalism was 45%. In 2009 it was 47% according to the Musharraf promise, and then it was increased from 47% to 56% in 2009 by Pakistan People's Party, and it was decided that it will remain 57 to 5% in next 4 years. यानी कि इस वक्त प्रोविंसेस का जो नेशनल इनकम में शेयर है वो 57.5% है। और 18th अमेंडमेंट के अंदर ये इसको जो फिस्कल फेडरलिज्म के एक्सपर्ट है वो कहते हैं ये बड़ा हेल्दी टेंडेंसी थी। फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे वर गेटिंग मोर शेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट को कम शेयर दिए गए। और इस वक्त आप लोगों को पता है पाकिस्तान में इसी चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है कि इस चीज़ को किसी तरीके से कम किया जाए। अच्छा खैर ये, और इसमें आप लोगों को मैंने 18th अमेंडमेंट में पहले पढ़ाया था कि जो नए इंडिकेटर सेट हुए थे उसके तहत प्रोविंसेस को 82% पॉपुलेशन की बुनियाद पे, 10.3% पॉवर्टी बुनियाद पर, रेवेन्यू जनरेशन 5% एंड इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की बुनियाद पर 2.7%, ये इंडिकेटर्स हैं जिसके तहत प्रोविंसेस को फ्राम टोटल 57.5% में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, पॉवर्टी और रेवेन्यू जनरेशन के मुताबिक दिया जाएगा। अच्छा खैर ये जो है ये मैं आप लोगों को बता रहा था। अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस NFC अवार्ड के तहत पंजाब का शेयर डिक्रीज हुआ है, बाकी तमाम प्रोविंसेस का शेयर इंक्रीज हुआ है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस NFC अवार्ड के तहत पंजाब का शेयर डिक्रीज हुआ और बाकी सूबों का शेयर इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ? इस NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 51.7% मिला, 51.7% मिला। इससे पहले पंजाब को 57.4% मिल रहा था। इस पीपल्स पार्टी के लाए हुए NFC अवार्ड के तहत सिंध को 24.6% मिला, उससे पहले सिंध का 23.7% था, यानी कि ये तो तकरीबन 1%, 1.1% की इंक्रीज़ हुई सिंध में। अलबत्ता पंजाब की डिक्रीज़ हुई है कोई 5 या 6% के करीब। बलोचिस्तान का जो शेयर था इस NFC अवार्ड के तहत ऑलमोस्ट डबल हो गया। पहले 55.1% था, ये ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 9.1 के करीब, ऑलमोस्ट डबल हो गया तकरीबन बलोचिस्तान का। तो इस NFC अवार्ड के तहत समहाउ बलोचिस्तान को अच्छा शेयर मिला और कुछ ज़्यादा पैसे मिले और गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्ट भी किया पॉपुलेशन के ऊपर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में। और KPK का जो था वो पहले था 13.8% और इस NFC अवार्ड के तहत ये बढ़कर 14.6% हो गया। तो समहाउ KPK की गवर्नमेंट को भी तकरीबन 1.2% ज़्यादा शेयर मिला। तो अल्टीमेटली फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर प्रोविंसेस को दे गॉट मोर शेयर। अच्छा जी, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट 6 के अंदर जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो ये हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये क्या हुआ और किस तरीके से ये चीज़ें प्रोविंसेस की फेवर में गई और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर किस तरीके से कम हुआ। अब इस चीज़ को ज़रा देखते हैं 18th अमेंडमेंट के बाद। 18th, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कंकरेंट लिस्ट इज़ अबॉलिश्ड and under the concurrent list 40 out of 47 subjects, concurrent list में से 40 out of 47 subjects they are given to the
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड 7 सब्जेक्ट्स जो थे दे वर गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अबॉलिश करके। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 15 जो मिनिस्ट्रीज थी दे वर हैंडेड ओवर टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब उन 15 जो बड़े इंपॉर्टेंट जो थे चीज़ें, उनमें से एक एजुकेशन था, एक एनवायरनमेंट था। आज यही बनाया जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास दे आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू डील विद द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के साथ उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये चीज़ होनी चाहिए थी। और फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि नेशनल कुरिकुलम होना चाहिए इफ़ वी पीपल आर विलिंग टू बिकम वन नेशन। If we are having different kind of education system, we are going to produce different kind of mentalities and perspectives. So ultimately, uniformity or cohesiveness in national mentality exist नहीं करेगी if the provincial governments they would be designing education curriculum according to their own wishes and desires. तो इसके ऊपर भी हो रहा है। अब हेल्थ का ये जैसा कि डिज़ास्टर आया हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास इतनी हेल्थ का भी एक इशू है जो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ये इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को बना सकें, तो ये भी जाना चाहिए। और इसी वजह से ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो 18th अमेंडमेंट के तहत गए हैं प्रोविंसेस के पास, बलोचिस्तान को, और इन लोगों के पास इतनी, ये दूसरे सूबों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। खैर, जो चीज़ असल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे चेंज हुए हैं। जैसा कि आर्टिकल 161 है, वो ये कहती है कि नेचुरल गैस और नेट प्रॉफिट, जो उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट नेचुरल गैस के ऊपर जो एक्साइज लेवी लगती थी और जो प्रॉफिट आता था हाइड्रो स्टेशन से, वो आप प्रोविंसेस के पास जाने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोविंसेस से निकलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चरल चेंज आई है आर्टिकल 161 के तहत 18th अमेंडमेंट में, जिसमें फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर प्रोविंसेस को ज़्यादा शेयर देने की कोशिश की गई। फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज नेचुरल गैस पे और नेट प्रॉफिट जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती थी, अब नाउ दे वुड बी गिवन टू दी प्रोविंसेस, बिकॉज ये वहीं से हासिल किए जा रहे हैं, उन्हीं के अंदर लगे हुए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात हुई है। और आर्टिकल 162 के तहत भी कि अगर कोई बिल या और कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेकर आना चाह रही है और प्रेसिडेंट की उसको सैंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को 163 के तहत ये बताया गया है कि उनकी कॉन्सेंट भी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि 163 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये बताया गया है कि दे कैन इम्पोज देयर ओन टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 148 के अंदर जो सेल टैक्स प्रोविंसेस से लिया गया था रेसमैन अवार्ड के तहत, वो कहीं जाकर 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 163 के तहत आप दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो सेल्स टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अनामली हैं कि गुड्स के ऊपर हैं या सर्विसेज के ऊपर हैं। तो लेकिन समहाउ खातिर ख्वाह अंदाज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई हैं। उसके बाद आर्टिकल 172 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्या कहता है कि जैसा कि इससे दो सूबों को फ़ायदा हुआ, एक बलूचिस्तान को फ़ायदा हुआ और एक सिंध को फ़ायदा हुआ। वो 172 आर्टिकल कहता है कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये जो चीज़ें बनाएंगी, जो भी चीज़ें डेवलप करती हैं, तो वो प्रोविंशियल कंसिडर की जाएंगी मल्कियत टेरिटरीज़, वो नेशनल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट की नहीं कंसिडर किए जाएंगी। तो मतलब है ये टूरिज्म से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फ़ायदा होगा, या कोई इंस्टॉलमेंट लगाती हैं कंटिनेंटल शेल्फ के अंदर। आपको पता है इसकी टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट होती हैं, और उससे बियॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन टेरिटोरियल कंटिनेंटल शेल्फ के अंदर, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नाउ दे आर अलाउड अंडर 172 सब क्लास 2 के तहत देयर शेयर इन द ब्लू इकानमी एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये चीज़ें मिली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मिली हैं। इसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता था कि एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है मुल्क के अंदर, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा शेयर था। आर्टिकल 58(2)(b) के तहत प्रेसिडेंट है असम्बलियाँ नेशनल गवर्नमेंट की और गवर्नर हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 112 सेक्शन 2 सब क्लास बी के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी डिसॉल्व कर सकते। अब इसको भी चेंज किया गया
और बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर चेंज किया गया। अब मैं आप लोगों को चंद बड़ी बड़ी चीज़ें बताता हूँ जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स के हक में हुई हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश की गई और 47 में से 40 सब्जेक्ट्स दिए गए और कुछ जो 7 थे 47 जो 7 बच गए थे उनमें से कुछ को फेडरलिस्ट 1 में और कुछ को फेडरलिस्ट 2 के अंदर शामिल किया गया। अब ये जो किए गए अच्छा लेजिस्लेटिव जो पार्ट 2 है, जो लेजिस्लेटिव जो फेडरलिस्ट पार्ट 2 है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो कुछ ऐसी हैं। अच्छा ये चीज़ें जो हैं ये मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, दीज थिंग्स वर बीइंग टेकन एंड इंक्लूडेड इन अंडर द सुपरविजन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो लेजिस्लेटिव जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 है उसके अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है और वो इन चीज़ों को देखती है। और इसके मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था देयर वर अर्लियर 8 सब्जेक्ट्स, इसको 18th अमेंडमेंट के तहत बढ़ाकर 10 और बढ़ाकर इसको 18 कर दिए गए और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में दी गई हैं, जिसके आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद होता है और कुछ फेडरल मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें शामिल की गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी एक ऐसा इशू जो सूबों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है और एमिकेबली रिजॉल्व किया जाता है। तो हेयर अगेन व्हाट वी फाइंड दैट मोर राइट्स एंड अथॉरिटी दे आर बेसिकली गिवन टू द प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स अंडर द 18th अमेंडमेंट देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 17 जो मिनिस्ट्रीज हैं they are given to the provincial governments in the 7th under the NFC or 18th amendment। उनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी एनवायरनमेंट है जैसा कि ये सूबों को दे दिए गए, सिविल लॉज दे दिए गए, कुरिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़ दे दी गई, एनवायरमेंटल कंट्रोल दे दिया गया, पॉपुलेशन प्लानिंग दे दी गई, ज़कात दे दिया गया, औकाफ दे दिया गया, आर्म्स एंड एमिनेशन। ये वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती थी और अब किसको प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स को दे देगी और प्रोविंशनल अल्टीमेटली प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिली है, फाइनेंशियल अथॉरिटी मिली है, पॉलिटिकल अथॉरिटी मिली है और प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स दे गॉट मोर सेटिस्फाइड देन बिफोर मिली हैं। अच्छा खैर उसके बाद आप लोगों को पता है कि प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो है जो फेडरलिज्म यही नहीं है कि प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए, बल्कि उनकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव अफेयर्स में भी इंश्योर करने को भी लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। अब मैं मिसाल देके बताता हूँ, उससे पहले सेनेट का कोई किरदार नहीं था, अब सेनेट को एम्पावर किया गया और आलमोस्ट एम्पावर किया गया है, इक्वेट किया गया है विद नेशनल असेंबली इन टर्म्स ऑफ पावर एंड फंक्शन। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से। मनी बिल के पहले ये 7 दिन रख सकती थी, अब इसको डिस्कशन के लिए 7 डेज दिया गया, उस पर डिस्कशंस होती हैं, अल्टीमेटली बेहतर सजेशंस आती हैं और चेंज होता है। उसके बाद पहले ये कहा गया था कि अगर नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं करवा सकती। लेकिन अब ये किया गया आर्टिकल 89 के तहत अगर सेशन ऑफ द सेनेट भी इन प्रोसेशन है फिर भी जो नेशनल जो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। तो पहले क्योंकि लेजिस्लेटिव काम करना किसका काम है, लेजिस्लेशन करना लेजिस्लेचर का काम है कि वो लॉ बनाए और ऑर्डिनेंस बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि अगर चाहे नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा हो या सेनेट का इजलास हो, जैसा कि बताया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सेनेट के अंदर आपको पता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन है प्रोविंसेस की और यहाँ पे भी उनकी से को देखा जाएगा, उनके इख्तियारात को और उनके कॉन्सेंट को कंसिडर किया जाएगा। और मैंने और जैसा कि जो पहले कैबिनेट जो थी वो पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल थी, अब बताया गया सेनेट के अंदर के वो सेनेट को भी आंसरेबल है। और अब जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताएगी जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था वो ये था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑन वन प्रीटेक्स्ट ऑफ द अदर या जैसा कि नेशनल डिज़ास्टर हो गया या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू इम्पोज इमरजेंसी इन एनी प्रोविंस, तो उसके लिए
इसको क्वालिफाई किया गया कि एमरजेंसी ऐसे नहीं लगाई जा सकती जैसा कि मैंने आर्टिकल 112 के तहत बताया कि उधर से नोट कर दिया आपके प्रेसिडेंट साहब ने और गवर्नर ने लगा दिया आर्टिकल 112 के तहत। नहीं नहीं नहीं, अब क्या किया गया, उसको जनाब सेनेट का उसको बताया गया कि प्रोविजनल जो असम्बली है वो पहले कॉन्सेंट देगी, हाँ भाई हालात काबू से बाहर हो गए और अब आप एमरजेंसी लगा दें, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। अगर नहीं, और अगर वो आपके प्रेसिडेंट साहब ने बगैर कॉन्सेंट लिए ये इमरजेंसी लगा दी क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, तो उस जो प्रोक्लेमेशन है उसको 10 दिन के अंदर अंदर आपने सेनेट और जॉइंट सेशन में रखना है और उसकी अप्रूवल लेनी होगी, अगर नहीं होगी तो उसको उठाना पड़ेगी। तो हियर अगेन यानी कि आप लोगों ने पहले देखा था 47 के अंदर और गवर्नर का जो दिल करता था वो करता था, और 56 के अंदर प्रेसिडेंट डमी गॉड बना हुआ था, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्लैकमेलिंग करता था, हर चीज़ में इंटरवीन करता था, प्रोविजनल अफेयर्स में उनके पास कुछ होता नहीं था। अब यहाँ पे रोका गया है। रोका किसको गया है? रोका गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विल के ऊपर प्रोविजनल अफेयर्स में अपनी नोज़ है वो पोक नहीं कर सकती। और उसके बाद ये जो सारे मामलात हैं, रिपोर्ट्स ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो सेनेट में भी रखनी है। तो सेनेट का इख्तियार बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी है उनको इंश्योर किया गया, क्योंकि सेनेट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो हर प्रोविंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसको इंश्योर की गई है और उनकी बात को कंसिडर किया गया है। अच्छा, अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को पहले ये इट वाज कंसिडर अ डेड हॉर्स कंसिडर किया था। 18th अमेंडमेंट में इसको री इन्विगोरेट किया गया है। री इन्विगोरेट कैसे किया गया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फेडरलिस्ट के जो 8 सब्जेक्ट्स है उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को दिए गए। एक बात। दूसरी बात क्या की गई कि प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत इसके यानी कि जो मेंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं, और इसकी जो टाइम जो है मीटिंग 90 दिन में कम से कम इसको एक बार मिलना है, और उसकी मीटिंग यानी एक क्वार्टर के अंदर इसकी एक मीटिंग हर सूरत में होनी है। और आर्टिकल 157 के तहत जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स का अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको रिजॉल्व करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सुपरवाइजरी कमेटी बना दी गई है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड है, चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है अगर फाइनेंस का मैटर है, वाटर का मैटर। तो क्या किया गया है कि प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं 18th अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद नेशनल इकनॉमिक जो काउंसिल है उसको भी इफेक्टिव किया गया, उससे पहले कुछ नहीं था। और अब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, और इसने कम से कम 1 साल के अंदर इसने हर सूरत में इसने 1 साल के अंदर 2 दफ़ा मिलना होता है और इसकी मीटिंग्स होना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है। और अब मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, असल में प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये डिस्कस हमने किया था कि 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये आता है कि 102 चेंजेस इन 70 आर्टिकल्स 102 चेंजेस इन 70 आर्टिकल आर बीइंग मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और इतना बड़ा यानी कि क्वार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज। और क्रिटिक्स कहते हैं कि इतनी बड़ी अगर चेंजेस लानी थी तो उसके लिए क्या रिक्वायर था, उसके लिए रेफरेंडम करवाना चाहिए था, और रेफरेंडम इतनी बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना था अगर आप लोगों ने, तो सारी चेंजेस तो नहीं। अब एनएफसी के अंदर जो चेंजेस हुई हैं और जिसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा इशू हुई है वो ये, ज़रा गौर से सुनिएगा, आर्टिकल 160 बहुत इम्पॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू दी चेंजेस इन एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 57 पॉइंट समथिंग हो गया है प्रोविंसेस का शेयर, जो कि 45% पे था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस का शेयर बढ़ने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कम हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? चलो ठीक है यार, तुम शेयर कम कर लो, पर अगर नेशनल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और उसके ऊपर प्रोविंसेस के कंसेंसस के साथ प्रोविंसेस अपना शेयर कम कर सकती हैं
और कुछ कुछ वक्त के लिए प्रोविंसेस को ज़्यादा शेयर दे सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कहते हैं 18th अमेंडमेंट इज़ वेरी रिजिड इन अ वे के जो आर्टिकल 160 है उसका 3A, आर्टिकल 163A, वो ये कहता है कि द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, और उसका जो अगले साल के अंदर जो उसका शेयर आना है इट शुड नॉट बी लेस देन द प्रीवियस अवार्ड। मेरी बात सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि आर्टिकल 160 का 3A जो प्रोविज़न है वो सजेस्ट ये करता है द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस कुड नेवर बी चेंज्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर बताया गया है, उसको कम नहीं किया जा सकता। कम नहीं किया जा सकने का मतलब समझ है। और अगर आपने प्रोविंसेस का शेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोविंसेस की कॉन्सेंट रिक्वायर नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर है ओनली देन जो इसका शेयर है वो डिक्रीज हो सकता, अदरवाइज डिक्रीज नहीं हो सकता। तो इसलिए पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन के इस क्लास को चेंज होना चाहिए जिसमें प्रोविंसेस का सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं कम कर सकती, क्योंकि 3A कहता है द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस कैन नॉट बी डिक्रीज एंड इट शैल नॉट बी लेस देन द शेयर इन प्रीवियस अवार्ड। उससे पिछला जो अवार्ड था उससे कम नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और इसलिए लोग 18th अमेंडमेंट के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको चेंज होना चाहिए और कोई फ्लेक्सिबल क्लास आना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्लास का मतलब है कि विद द कंसेंट ऑफ प्रोविंसेस, विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूचुअली बैठ कर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, या अब आप शेयर कम ले लें, अगले साल ज़्यादा दे देंगे, अगले 2 सालों में कम कर लें, उससे 2 सालों में ज़्यादा दे देंगे। ये जनाब फिक्स कर दिया गया कि शेयर कम नहीं हो सकता और पिछले से ज़्यादा कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। और जो आर्टिकल 3A के साथ जो क्लास जो है 3B, वो ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शेयर दे रही हैं प्रोविंसेस को कि नहीं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो मिनिस्टर्स हैं और जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो जनाब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बाय एनुअली रिपोर्ट्स पेश करेंगे हर 6 महीने के बाद और बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस प्रोविंस का शेयर रोका हुआ है और किस प्रोविंस का शेयर नहीं रोका हुआ। और अगर शेयर रोका होगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ह्यू एंड क्राई करेगी, मीडिया पे आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंसिव हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस इन NFC अवार्ड है, 7th NFC अवार्ड आर्टिकल 160 के 3 और 3B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से 18th अमेंडमेंट में अंदर पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन के इसको चेंज होना चाहिए और NFC अवार्ड में और प्रोविंसेस का शेयर कम होना चाहिए और इसको लाने चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने अब आप लोगों को बताई हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं इस पर आपका क्वेश्चन लेना चाहता हूँ और फिर इसके ऊपर डिस्कस करें। जी बेटा, क्या बात पूछना चाह रहे हैं मुझसे? देखें जी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब भी अमेंडमेंट लाना होती है ना, वो पॉलिटिकल बारगेनिंग से होती है। और पॉलिटिकल बारगेनिंग अब होनी है नून लीग के साथ और PP के साथ कि इनके जितने केसेस हैं वो सारे केसेस इनके ख़त्म हों, उन केसेस को ख़त्म किया जाए और उन केसेस को ख़त्म करके फिर ये वोट दे देंगे 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने के लिए, नई अमेंडमेंट के लिए। वैसे नहीं, और इसके लिए गवर्नमेंट की जो लीगल मॉरल अथॉरिटी है उसको डिक्रीज़ करने के लिए अब हुकूमत को भी कमज़ोर करने के लिए क्या किया जा रहा है, डिफेंसिव किया है। हुकूमत पहले कहती थी ना छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कहता था किसी रुलाऊंगा नहीं छोड़ूंगा इनको। तो अब इमरान खान की जो मॉरल अथॉरिटी को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान की अपनी कैबिनेट के जो लोग मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो काफ लीग इन्वॉल्व है या दूसरे लोग उनके पुराने केसेस खोले जा रहे हैं। पुराने केसेस खोल के इमरान खान की ये जो विल है और अथॉरिटी है उसको कहते हैं कमज़ोर किया जाए और वो बारगेनिंग के ऊपर और अपोजिशन को भी रिलीफ मिल जाए और इस तरीके से जो बड़े लेवल की जो अमेंडमेंट्स हैं उसको करने में कामयाब हुआ जाए। और ये देखें अब ये बारगेनिंग होनी है और फ्री होनी है और जब नून लीग को रिलीफ मिलेगा, अपोजिशन को रिलीफ मिलेगा और गवर्नमेंट की जो मॉरल अथॉरिटी जो है वो कमज़ोर होगी क्योंकि करप्शन उसके अपने घर से निकलेगी, तो अल्टीमेटली अपने लोगों को बचाने के लिए और प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स का और इस्टेब्लिशमेंट का जो डिमांड है पूरा करने के लिए ये मान जाएगी बारगेनिंग पे। ठीक है जी, और कोई बात?
और कोई बात बेटा? चलें जनाब, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये